Good afternoon, ma'am. So the patients were Okay, overtaxed at Abhimanyu, the same Abhimanyu, आपने starting से read करना है. Okay, Abhimanyu, from the topic taxation in Doab Yes, sir. region. Another experiment. यहाँ से start करना है. Yes, sir. Yes, sir. Another experiment in the Doab. Doab region between the river Ganga Yamuna made with immensely unpopular. Immensely. He Ganga and Yamuna made him immensely unpopular. He increased the land revenue 10 to 30% apart from the land revenue. Several new taxes were also imposed, so the patients were overtaxed. At the same time, the rain failed and famine became a general or कहाँ पे? occurrence and famine became a general occurrence. Human air taxes were not released and what collect the rigorous manner as a Taxes result were not of a okay. harsh taxation. Taxes The were not peasants relaxed and were collected in rigorous manner. Okay, rigorous manner And- as a result of such harsh taxation. peasant rebelled and the poor peasants were Rebelled. The rich peasants rebelled and poor peasants were ruined totally. Okay, next is Anshika Dogra 1386, same topic. The taxation in Doab region. Experiment in the Doab region between the river Ganga and Yamuna made him immensely unpopular. He increased the land revenue from 10 to 30%. Apart from the land revenue, several new taxes were also imposed. So the peasants were overtaxed. At the same and famine became a general occurrence. But during the famine years, taxes were not relaxed and were collected in rigorous manner. As a result of such harsh taxation, the rich peasants rebelled, poor peasants were ruined totally. Okay, so next is Briti 2440. Yes, sir. Okay, Briti, same topic. Yes, sir. Taxation a Doab region. Another experiment in a Doab region between the river Ganga and Yamuna made him immensely unpopular. He increased the land revenue from 10 to 30%. Apart from the land revenue, several new to the patients were overtaxed. At the same time, the rain fell. At the same time, the rain fell and famine became a general occurrence. But during the famine year, taxes were not elected and were collected in rigorous manner. As a result of such harsh taxation, the rich As a result of such harsh taxation, the rich patients rebelled and the poor patients were run totally. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक टैक्सेशन इन दोआब रीजन. ओके, दोआब नहीं, इसे ये एक्चुअली में हिंदी का वर्ड है, इसे हिंदी में कहते हैं दोआब. ओके, तो इंग्लिश में भी इसे इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं दोआब रीजन. ओके, क्योंकि ये हिंदी का वर्ड है ये. ओके, तो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. जब वो रूल कर रहा था
तो उसने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए। तो फर्स्ट था करेंसी एक्सपेरिमेंट, एंड सेकंड वाज शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, एंड थर्ड वाज इन टैक्सेशन। क्योंकि टैक्स उसने किस तरह से इंक्रीज किया। ओके, तो पहले मैंने आपको बताया था सभी स्टूडेंट्स को कि व्हाट यू मीन बाय दिस द्वाब रीजन। ओके, द्वाब रीजन मींस डू मींस टू एंड एबी मींस वाटर। ओके, तो मींस अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ओके, अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, और यहाँ पे टू रिवर्स कौन सी हैं? गंगा एंड यमुना। तो मींस गंगा एंड यमुना दोनों रिवर्स के बीच में जो लैंड एरिया है उसको कहा गया यहाँ पे द्वाब रीजन। ओके, मेड हिम इमेंसली अनपॉपुलर। तो यहाँ पे इसने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे ये काफी अनपॉपुलर हो गया ये। ओके, ओके, तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? सो ही इंक्रीज द टैक्स, ही इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम 10 to 30%। तो पहले जो वो 10% लेता था उसने इंक्रीज कर दिया। ओके, मोर देन हाफ, 10 to 30%। अपार्ट फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू सेवरल न्यू टैक्सेस वर इम्पोज्ड। तो उसने लैंड रेवेन्यू तो इंक्रीज किया ही कि उसने फ्रॉम 10 to 30%, साथ में इसने और सेवरल टैक्सेस भी इम्पोज किए उसने। ओके, काफी उसने सेवरल टैक्सेस भी इम्पोज किए उसने। सो द पीजेंट्स वर ओवर टैक्स। तो मीन्स जो वहां पे जो पीपल्स थे उनमें क्या हुआ? वो काफी ओवर टैक्स हो गए, कि उनमें मीन्स वो हर चीज पे टैक्स दे रहे थे वो। एट द सेम टाइम द रेन फेल एंड फेमाइन बिकम अ जनरल अकरेंस। ओके, तो उस टाइम क्या होता है कि वहां पे बारिश नहीं होती है, रेन फेल, एंड वहां पे फेमाइन आ जाता है उस एरिया में। ओके, बट द ड्यूरिंग द फेमाइन यस टैक्सेस वर रिलैक्स एंड वर कलेक्टेड इन रेगुलर मैनर। ओके, तो देखो एक तो लैंड पे पहले फेमाइन आ गया है, ऊपर से जो किंग है इनका उसने क्या किया? उसने जो टैक्स थे उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी उनको। उसने कहा कि जो टैक्सेस हैं वो आपको एज इट इज ही आपको पे करने पड़ेंगे, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू ले रही है आपको एज इट इज ही पे करना पड़ेगा आपको। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ सच हार्श टैक्सेशन द रिच पीजेंट्स रिबेल्ड एंड द पुअर पीजेंट्स वर रूइंड टोटली। ओके, तो मींस जो काफी रिच पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया? रिबेल किया उन्होंने, और जो पुअर पीजेंट्स थे वो उनके मींस वो टोटली रूइंड ही हो गए वो। ओके, टोटली रूइंड, टोटली मीन्स कि उनका जो हिंदी में कहें तो मीन्स उनका अस्तित्व वही वहां से बिल्कुल ही गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो टैक्स नहीं पे कर सके, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट की ये कंडीशन थी कि कंडीशन चाहे कुछ भी हो आपको टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा आपको। ओके, तो इससे क्या हुआ कि जो वहां के जो पीपल्स थे वो काफी ओवर टैक्स हो गए। पहले भी टैक्स था, पहले भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहां पे उसने इंक्रीज किया फ्रॉम 10 to 30% एंड आल्सो सेवरल टैक्सेस वर आल्सो इम्पोज्ड, सो द पीजेंट्स वर ओवर टैक्स्ड। ओके, ओवर टैक्स्ड। फेमाइन आता है उस लैंड में, लेकिन फिर भी जो टैक्सेस हैं उन टैक्सेस में कोई उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। तो जो पीजेंट्स थे, जो रिच थे, उन्होंने रिबेल किया, जो पुअर पीजेंट्स थे दे वर टोटली रूइंड। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. ओके, ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद चीफ ऑफिशियल्स ऑफ द सल्तनत। ओके, कि मींस मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग पीरियड में कौन कौन से चीफ ऑफिशियल्स थे। ओके, ये आपको एक बिल्कुल आपको एक फ्लो चार्ट में दिया गया है। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स इसे अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, और जैसे हमारे पास टाइम होगा तो आप सभी को इसमें इसका होमवर्क मिलेगा आपको। ओके, आपको ये एज इट इज अपनी नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है आपको ये। Okay, apart from the Sultan and his nobles, there were other officials to support the administrations. Means कि मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान तो था ही था, साथ में उसके नोबल्स भी थे, पर अदर ऑफिशियल्स भी थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को काफी सपोर्ट करते, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से गवर्न करते, अच्छे से रन करते थे। ओके, तो इसमें मोस्टली जो पर्सन थे, फर्स्ट ममलुक, सदर उसदर, दीवान आई रिसालत, बरीद आई ममलुक, वकील आई दर, नायब उल मुल्क एंड अमीर आई हिजाब, सर आई जंदर। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे पर्सन थे ये। ओके, तो सबसे पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज ओके, फर्स्ट अरियान 2755। Yes, sir. अरियान आपने रीड करना है। ओके, Sir, ओके, page सभी number स्टूडेंट को स्क्रीन विजिबल है? ओके, क्योंकि बाद में नहीं कहना है कि सर हमारे पास बुक नहीं है तो हम रीडिंग नहीं कर सकते हैं हम।
ओके सभी को स्क्रीन विजिबल है, जिस स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो स्क्रीन देखिए रीडिंग कर सकते हैं। ओके बाद में मुझे कंप्लेंट नहीं करनी है कि सर हमारे पास बुक नहीं है और हम रीडिंग नहीं कर सकते हम। ओके हाँ, सो अरियान स्टार्ट रीडिंग। सर एसटीडेक्स से। हाँ नो, आपने रीड करना है फ्रॉम पेज नंबर 49 फर्स्ट से। ओके अपार्ट फ्रॉम द सुल्तान एंड हिज नोबल्स, यहाँ से Yes, read करना sir. है। Apart from the Sultan and his nobles, there were other officials to support the administration. Wazir looked after the financial department and the income, expenditure and revenue collection. Diwan Shah dealt with Deal. royal ओके डील, ये वर्ड बना है डील से। ओके डील्स विद रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। Aris Mamluk अरीज was आई the minister ममलुक, for and looked अरीज आई ममलुक, after the army. सदर Aris उसदर, I Mamluk was the minister of war and looked after the army. Sadr सदर Asudar उसदर एनफोर्स inform Islamic rules and इस्लामिक regulations. Diwan-i दीवान आई रिसालत, Risalt was the Minister of Foreign Affairs. Barid-i Mamluk was the head of the state news next against is हर्षित कटोच। ओके अरियान हाँ, Yes, next is sir. हर्षित कटोच 1371। हाँ स्टार्ट रीडिंग Yes, sir. फ्रॉम दीवान आई रिसालत। Yes, sir. Diwan-i Risalat was the Minister of Foreign Affairs. फॉरेन Barid अफेयर्स, I yes फॉरेन अफेयर्स, Foreign Affairs. Barid I Mamluk was the head of the state news agencies. Wakil I Dar looked after the royal household and the royal kitchen and stables. Naib ul Mulk looked after the military organization. Amir I Hizab was the master of ceremonies or the royal chamberlain of the court. Sir I Jandar looked after the king bodyguard and also dealt with punishment of the criminals and war prisoners. war prisoners। ओके द पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स एंड वॉर प्रिजनर्स। ओके तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद हम। ओके तो फर्स्ट वन इज वजीर। ओके तो अगर आपने गेम खेली है तो उस चेस में आपको एक वजीर मिलता है एक आपको। ओके कि वजीर क्या वर्क करता है वहां पे। ओके वहां पे उसके साथ बहुत सारी पावर्स होती है उसके पास। ओके वजीर के पास चेस गेम जब आप खेलते हैं इसमें बहुत सारी पावर्स होती है वजीर के पास, इवन जितनी किंग के पास नहीं होती है। ओके सो वजीर looked after the financial department and the income expenditure and revenue collections. ओके तो वजीर का क्या वर्क है, करेंट डिपार्टमेंट को लुक करेगा एंड द इनकम गवर्नमेंट को, आल्सो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू कलेक्शंस कि सभी की देखरेख कौन करेगा, वजीर करेगा। So Wazir looked after the financial department and the income expenditure and revenue collection of the government. Okay, next is Diwan-i-Insa dealt with the royal correspondence. Okay, तो जो royal correspondence होंगे, okay, उनके साथ वो डील करेगा वो। Ariz-i Mamluk was the minister of war and looked after the army. Okay, Ariz-i Mamluk क्या काम करता था कि वॉर का मिनिस्टर था एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द आर्मी। ओके आर्मी की देखरेख भी करता था एंड ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ वॉर। नेक्स्ट वन इज सदर उसुदर एंड फोर्सेस इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके तो ये क्या करता था, ये जो इस्लामिक रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं इन्हें एनफोर्स करता था। ओके ये सभी इसकी देखरेख करता था ये कि जो पीपल्स हैं वो इस्लामिक जो पर्सन्स हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। So next is दीवान-ए रिसालत was the minister of foreign affairs. ओके तो ये क्या था, ये मिनिस्टर था फॉरेन अफेयर। जैसे करंट सिनेरियो में आज की डेट में भी फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं।
ओके, जो डील करते हैं विद फॉरेन अफेयर्स, कि बाहरली कंट्री से जो भी कोई हमने कोई डील करनी है हमने, या कोई अगर हमने उनसे कोई बात करनी है, तो कौन डील करता है? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। ओके, तो दीवाने आई रिसालत वाज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। नेक्स्ट वन इज बरीद आई ममलुक वाज द हेड ऑफ द स्टेट न्यू एजेंसी। ओके, तो जब स्टेट की जो न्यूज होती थी उसका हेड होता था बरीद आई ममलुक, वाज द हेड ऑफ द स्टेट न्यूज एजेंसीज। नेक्स्ट इज वकील आइदर। तो वकील आइदर लुक्ड आफ्टर द रॉयल हाउस होल्ड, कंट्रोल द पर्सनल स्टाफ ऑफ सुल्तान, रॉयल किचन एंड स्टेबल्स। ओके, तो ये क्या करता था? ये जो रॉयल हाउस होल्ड थे उनकी देख रेख करता था, और जो पर्सनल स्टाफ था जो कि उसके अंडर वर्क करता था, और जो सुल्तान के लिए वर्क करता था, एंड ऑल्सो जो काफी रॉयल रॉयल पर्सन होते थे, तो पर्सनल स्टाफ को वो कंट्रोल करता था ऑफ सुल्तान, एंड रॉयल किचन एंड स्टेपल्स। ओके, तो रॉयल किचन और स्टेपल्स को भी वो उन्हें कंट्रोल करता था। ओके, तो नेक्स्ट इज Sir, can I नाइब read? उल मुल्क। ओके, अभी नहीं रीड। नाइब उल मुल्क लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के वर्क थे वो कौन उसको कंट्रोल करता था, कौन उसे रेगुलेट करता था? इट्स नाइब उल मुल्क। ओके, एंड द सेकंड लास्ट वन इज अमीर आई हजीब। ओके, अमीर आई हजीब वाज द मास्टर ऑफ द सेरेमनीज और द रॉयल चैम्बरलिन ऑफ द कोर्ट। ओके, तो जो कोई वो सेरेमनीज जो वो हेल्प करते थे उसके वो मास्टर था, एंड ऑल्सो द रॉयल चैम्बरलिन ऑफ द कोर्ट, तो जो कोर्ट होता था सुल्तान का उसकी भी वो उसे रेगुलेट करता था। एंड द लास्ट वन इज सर आइजंदर। So he looked after the king's bodyguard and also dealt with the punishment of the criminals and war prisoners. तो सर आइजंदर क्या वर्क करता था? जो किंग के बॉडीगार्ड थे उन्हें लुक करता था, ओके, उन्हें रेगुलेट करता था, उनकी देखरेख करता था, एंड ऑल्सो डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स एंड वॉर प्रिजनर्स। तो जो क्रिमिनल्स और जो वॉर प्रिजनर थे उनको पनिशमेंट देता था वो, ओके, कि किस तरह की उनको पनिशमेंट देनी है। ओके, तो ये सभी स्टूडेंट्स को ये सभी अच्छे से लर्न होने चाहिए, ओके, कि कौन सा पर्सन कौन सा क्या वर्क कर रहा है। ओके, लाइक वजीर, सदर सुदर एंड दीवाने आई इंसा। ओके, सभी को ये अच्छे से लर्न करने हैं। आपको एक दिन का टाइम मिल रहा है, सभी स्टूडेंट आज इसे अच्छे से लर्न करेंगे, और आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ऑन मंडे को मैं सभी स्टूडेंट से आस्क करूंगा, ओके, कि वजीर क्या वर्क करता था, दीवाने रिसालत का क्या मेन पर्पस था, क्या वर्क था, एंड ऑल्सो अमीर आई हजीब। ओके, तो ये सभी आपने अच्छे से लर्न करने हैं। क्लियर? जो आज हमने अभी तक स्टडी किया, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स? No, sir. ओके, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है? No, sir. Excuse me, sir. हाँ, यस प्रीति। सर एक्चुअली मेरे मोबाइल की बैटरी 0% हो गई थी, इसलिए मैंने अभी दूसरे मोबाइल से ज्वाइन किया। तो सर आप मेरे को एक बार वापस से समझा दोगे? ओके ओके प्रीति, हमने किया है हमने अभी। ओके, फर्स्ट हमने किया था टैक्सेशन इन दोआब रीजन। ओके, तो जैसे आप अवेयर है कि लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था हमने, ओके, कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए उसने। ओके, काफी एक्सपेरिमेंट्स किए उसने। तो फर्स्ट था उसका करेंसी एक्सपेरिमेंट, सेकंड वन इज द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। तो जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे दोनों के दोनों काफी फेल थे। तो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उसने, सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टोटली बेस्ड ऑन टैक्सेशन, कि किस तरह से उसने टैक्स इंक्रीज किए। सो अनदर एक्सपेरिमेंट इन द दोआब रीजन, और मैंने बताया था कि दोआब रीजन मींस अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो यहाँ पे टू रिवर्स है, गंगा एंड यमुना। ओके, तो दोआब रीजन मींस अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो ये एरिया था गंगा एंड यमुना रिवर्स के बीच का एरिया। ओके, तो वहां पे वो क्या करता है कि उसे लगता है मोहम्मद बिन तुगलक को कि ये जो रीजन है, ओके, ये लैंड बिटवीन टू रिवर्स के बीच का लैंड पोर्शन है। तो यहाँ पे जो सॉइल है काफी फर्टाइल सॉइल है, और यहाँ पे जो क्रॉप कल्टीवेट होती है, जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है, काफी हाई होती है। ओके, तो सो ही इंक्रीज द लैंड 30%। तो उसने लैंड रेवेन्यू को 10 to 30% इंक्रीज किया। लैंड रेवेन्यू के टैक्स के साथ साथ उसने काफी सेवरल न्यू टैक्सेस भी इम्पोज की उसने। ओके, तो इससे क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे वो वर ओवर टैक्स, वो सभी के सभी ओवर टैक्स मीन्स कि उनके ऊपर काफी सारे टैक्सेस हो गए। और उसी टाइम में क्या होता है कि जब काफी कम बारिश होती है, काफी लेस रेन होती है, और फेमाइन आ जाता है उस लैंड पे। ओके, तो जब फेमाइन आ जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि वहां पे वो टैक्सेस में कोई रिलैक्सेशन नहीं देता है किसी को भी नहीं।
कि कोई बात नहीं, फेमाइन आया हुआ तो क्या बात होगी, ओके। लेकिन वो टैक्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं देता किसी भी पीजेंट्स को, ओके। सो बट द ड्यूरिंग फेमाइन ईयर्स टैक्सेस वर नॉट रिलैक्स्ड एंड वर कलेक्टेड इन रिगोरस मैनर, ओके। तो जिस तरह से टैक्स को पहले कलेक्ट करते थे उसी तरह से वो टैक्स को उसने कलेक्ट करना स्टार्ट रखा उसने, ओके। तो इससे क्या हुआ, इससे जो काफी रिच पीजेंट्स थे उन्होंने रिबेल किया, एंड जो पुअर पीजेंट्स थे दे वर टोटली रूइंड अवे, ओके। मींस कि उनका बिल्कुल अस्तित्व भी खत्म हो गया, क्योंकि उनके ऊपर इतने सारे टैक्सेस थे, ऊपर से फेमाइन था, लेकिन टैक्सेस में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली, तो बिल्कुल उनके खत्म ही हो गए वो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट किया हमने Excuse me, sir. yes, Sir, Ashima? what is the meaning of famine? Sir, what is the meaning of famine? Okay, famine means and किसी भी स्टूडेंट को मालूम है what does this word mean, famine? Yes, No, sir. हाँ, किसी आता है famine का वर्ड का मीनिंग? हाँ, पल्लवी। सर मुझे नहीं आता है। हाँ, किसने ये असर किया अभी? सर अक्षिता राणा। हाँ, ओके अक्षिता। अक्षिता राणा, Yes. what does this word mean? हाँ, famine वर्ड का मीन? Sir, a lack of food over a long period over time in a large area that can cause the death of many people. ठीक है, वो आपने डेफिनेशन दे दी, ओके। कि काफी टाइम तक वहां पे जो फूड की जो प्रोडक्शन है काफी कम होती है वहां पे, मींस कि फूड काफी कम होता है वहां पे, लेकिन उसे एग्जैक्ट वर्ड में क्या कहते हैं हिंदी में? Sir, which one? सर सूखा, सर सूखा। हाँ, हाँ, किसने आंसर किया ये? सर हर्षित कटोच। हाँ, हर्षित कटोच, ओके। फेमाइन मींस कि वहां पे बिल्कुल क्या हो गया, वहां पे सूखा पड़ गया वहां पे, ओके। कि किसी भी चीज की प्रोडक्शन नहीं हो रही है वहां पे, कोई भी क्रॉप कल्टीवेट नहीं हो रही है, ऊपर से रेन भी नहीं हो रही है वहां पे, हर चीज की कमी है वहां पे, ओके। और यहाँ मैक्सिमम कब आता है फेमाइन? जब किसी भी लैंड एरिया में काफी टाइम तक वहां पे बारिश नहीं होगी, ओके। तो उसे कहते हैं फेमाइन, हिंदी में मीन सूखा। ओके, तो जो आज हमने अभी स्टडी किया है, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? कोई No, टॉपिक sir. क्लियर नहीं हुआ है? किसी वर्ड में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? ओके, उसके बाद जो हमने नेक्स्ट किया था हमने अपार्ट फ्रॉम द सुल्तान एंड हिज नॉवेल्स देयर वर अदर ऑफिशियल्स हु सपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। कि सुल्तान और उसके नॉवेल्स के साथ में और भी ऑफिशियल्स थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करते थे, ओके। लाइक वजीर, सदर उल सुदर, वकील आई दर, नाइब उल मुल्क, अमीर आई हजीब, सर आई जंदर, दीवान आई इंसा, दीवान आई रिसालत, अरीज आई ममलुक, बरीद आई ममलुक, ओके। तो ये वो पर्सन थे, ये ऑफिशियल्स थे जो कि डिफरेंट वर्क्स को रेगुलेट करते थे, कंट्रोल भी करते थे, ऑल्सो दे रेगुलेट, ओके। लाइक वजीर, तो वजीर सबसे पहले क्या वर्क करता था? दे लुक आफ्टर द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एंड द इनकम एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू कलेक्शन। Diwan-e-Insa dealt with the royal correspondence. Ariz-i Mamluk was the minister of the war and looked his army. Sadr enforces Islamic rules and regulations. Diwan-e-Risalat was the minister of foreign affairs. Barid-i Mamluk was the head of the state news agencies. Wakil-i Dar looked after the royal household, controlled the personal staff of Sultan, and also the royal kitchen and stables. Nabib ul Mulk looked after the military organizations. Amir I Hazib was the master of the ceremonies or the royal chamberlain of the court. And the last one is Sir Isandar looked after the king's bodyguard and also dealt with the punishment of the criminals and war prisoners. ओके, तो आज हमने ये स्टडी किया हमने, तो सभी स्टूडेंट्स को ये सभी ऑफिशियल्स के अच्छे से लर्न होने चाहिए, ओके। कि ये ऑफिशियल्स क्या वर्क करते थे सभी ये, ओके। कौन से वर्क ये करते थे, एंड ऑल्सो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनके, किस चीज को ये कंट्रोल करते थे। Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी की अटेंडेंस ले लेते हैं, ओके। उसके बाद आपसे क्वेश्चन आस्क करूंगा मैं, ओके।
स्टूडेंट क्लास लेफ्ट नहीं करेगा अंटिल की जब तक आपकी क्लास एंड नहीं हो जाती यहाँ से। ओके, फर्स्ट हम पहले आपसे एक तो क्वेश्चन आस्क कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज अस्मित चौहान। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन होना चाहिए। ओके, अदरवाइज क्लास से डायरेक्ट मूव होंगे। ओके, श्रिया गोगना 1324, वृति, ओके, प्रियंका, प्रत्युष, अस्मित चौहान एंड अरियान, अभिमन्यु। किसी भी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, सभी अपना कैमरा ऑन रखेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज अंशिका डोगरा 1386। Yes, sir. ओके, Yes. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल? ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, अपने कैपिटल को शिफ्ट किया था। ओके, तो कहां से कहां शिफ्ट किया था उसने? अंशिका डोगरा। Yes. Sir, Muhammad bin Tughlaq was his capital Delhi to Delhi. ओके, दिल्ली टू देवगिरी और दौलताबाद। ओके, फर्स्ट सिटी का नेम था देवगिरी और बाद में जब कैपिटल शिफ्ट हो जाती है सो ही रीनेम्ड द सिटी विद द नेम दौलताबाद एंड दिस सिटी वाज सिचुएटेड इन द साउथ एंड आल्सो equidistant from Delhi. Okay, Araf Rana 1309. Yes, sir. Okay, same question. मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल कहां से कहां शिफ्ट की? Yes, sir. Muhammad Tughlaq was the shifting of his Was the capital shifting of his Delhi to capital- Devgiri in the south, Devgiri, which he renamed Daultabad. दौलताबाद। Okay, Daultabad. दौलताबाद। Okay, next is Vriti 2440. Yes, sir. Vriti, same question. Sir, what is question, sir? Actually, my Question is Muhammad bin Tughlaq shifted his capital from where to where? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल कहां से कहां शिफ्ट की थी? Sir, excuse me, sir. हाँ, यस प्रियांशी। सर आज का होमवर्क सर उसमें आज का होमवर्क नहीं आया है। हाँ, किसमें होमवर्क नहीं आया आपको? नोटिस बोर्ड में? नो सर। सर असाइनमेंट में। हाँ, मैंने ओके, नोटिस बोर्ड में अपलोडेड है होमवर्क, अपने फोन को अच्छे से चेक करना है। सर असाइनमेंट में होमवर्क बाकी बता रहा स्टूडेंट्स को होमवर्क मिल गया सभी कोई? Yes, sir. हाँ, तो प्रियांशी को क्यों नहीं मिला है होमवर्क अभी तक? अपने नोटिस बोर्ड में चेक करना है अच्छे से। ओके, सर उसमें आ रहा है लगता है बट अपने सर फोन पे अपने आईडी से लॉग आउट किया होगा आपने। लॉग आउट करने के बाद आपने लॉग इन किया होगा। ओके, तो दैट्स व्हाई आपको होमवर्क नहीं विजिबल हुआ है। सर हुआ है बट सैटरडे का हुआ है। सैटरडे का होमवर्क हुआ है बेटा? आज Yes, sir, फ्राइडे है, sir. आज आपको 1 वीक का होमवर्क आपको विजिबल हुआ है। आज फ्राइडे है, आज कल है सैटरडे। ये कैसे हो सकता है? सर जो मैंने सैटरडे का होमवर्क खोला सर उसमें 1 to 5 क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन के। अरे ऑब्जर्वेशन के, ये तो मैंने आज भी Yes. होमवर्क दिया है मैंने आपको। सर ये असाइनमेंट को बोल दीजिए 9 AM तक होती है, कल तक सैटरडे तक। अच्छा, असाइनमेंट के लिए कह रहे हो? हाँ, तो असाइनमेंट का ही आपको जो होमवर्क दिया है आपने वही करना है अपनी नोटबुक में, उसके बाद असाइनमेंट पे अपलोड करनी है इसकी इमेज। ओके, उसका जो टाइमिंग है अपनी फोटो, आपकी होमवर्क की फोटो अपलोड करने का, उसकी कल है टाइमिंग सुबह 9 AM। उससे पहले आपने अपलोड करना वहाँ पे। ओके ओके प्रियांशी? यस सर। हाँ, होमवर्क आपको नोटिस बोर्ड में ही मिलेगा आज का होमवर्क। ओके, बाकी आपने होमवर्क कंप्लीट करके वहां पे अपलोड करनी है इमेज आपने इन असाइनमेंट। ओके, जो आपको कल होमवर्क मिलेगा वो नेक्स्ट होमवर्क आपको कल 9 AM के बाद स्टार्ट होगा कल वो। ओके, तो आप सभी की अटेंडेंस ले लेते हैं फर्स्ट।
Okay, so first is Akshita Rana 1455, Present, sir. Arab Rana 1309, Present, sir. Abhimanyu 1252, Present, sir. Pratyush 1242, Present, sir. Ashima 1420, Present, sir. Avin and Ashish 3138 3139, Anshika Dobra 1386, Present, sir. Harshit Katoch 1371, Present, sir. Kriti 1251, Kriti 1251, Monal 1928, Present, sir. Pallavi 1288, Present, sir. Priyanka 1336, Priyanka 1336, Priyanshi and Divyansh, Present, sir. Ruhani 2573, Present, sir. Sameer 1412, Present, sir. Sajal 395, Present. Shubham 1885, Shubham 1885, Vanshika 1886, Present, sir. Vritti 2440, Present, sir. Divyansh Patyal 1836, Divyansh Patyal, Sia Gogna 1324, Present, sir. Divyansh Patyal 1836, ओके कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई अभी तक? No, sir. ओके जो आज हमने स्टडी किया है, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? यू हैव एनी डाउट फ्रॉम एनी टॉपिक? ओके तो No, आपके sir. आपके सभी के यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। सिलेबस मैंने अपलोड किया है क्लासरूम लाइव ऐप पे, नोटिस बोर्ड में आप चेक कर सकते हैं। ओके आपको ये चैप्टर भी आएगा, जहां तक हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे वहां तक आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। लाइक अगर हमने ऑब्जर्वेशन बुक के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं तो आपको वही आएंगे सिर्फ। ओके प्रैक्टिस जोन के नहीं आएंगे आपको। ओके जहां तक हम कंप्लीट कर लेंगे इसे, हो सकता है हम ट्यूसडे तक इस चैप्टर को हम विद प्रैक्टिस जोन कंप्लीट कर लेंगे। ओके हाँ आपको सिलेबस वहां पे अपलोड किया है, सभी स्टूडेंट्स चेक कर लेंगे वहां पे। ओके किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।